سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر انتخابی ریلی کے دوران قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ زخمی ہو گئے مگر ان کی جان محفوظ رہی۔ ٹرمپ پر گولی چلانے والے مشتبہ نوجوان کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ فائرنگ سے ریلی میں شریک ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک حامی مارا گیا جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے۔ حملے کے شبے میں ایک شخص کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق حملہ آور ڈونلڈ ٹرمپ سے 120 گز دور موجود تھا اور سنائپر یعنی ماہر نشانے باز تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ابھی 5-6 منٹ گزرے تھے کہ فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا۔ جس وقت گولی چلائی گئی اس وقت ٹرمپ غیر قانونی امیگریشن سے متعلق معاملے پر بات کر رہے تھے۔ قاتلانہ حملے میں گولی ڈونلڈ ٹرمپ کے دائیں کان کو چھوتی ہوئی گزری جس سے خون جاری ہو گیا اور بہتا ہوا ان کے چہرے سے ہونٹوں تک آ گیا۔ امریکی میڈیا نے ایک تصویر جاری کی ہے جس میں گولی ڈونلڈ ٹرمپ کے سر کے بالکل قریب سے گزرتی ہوئی دیکھی بھی جا سکتی ہے۔ خطاب کے دوران گولیاں چلیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے کان کو چھوا اور نیچے بیٹھ گئے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے فوری طور پر ٹرمپ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ایک خاتون اہلکار بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے ڈھال بن گئی اور سابق صدر کے پورے جسم کو محفوظ بنا لیا گیا۔ ٹرمپ اہلکاروں کی مدد سے اٹھے تو ان کے کان سے خون بہہ رہا تھا۔ اہلکاروں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ آپ کے سر سے خون بہہ رہا ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ٹرمپ نے اہلکاروں سے کہا کہ ٹھہرو، مجھے جوتے پہننے دو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کھڑے ہوئے تو ہوا میں مکے لہراتے ہوئے بولنے لگے، پھر سیکیورٹی اہلکار انہیں مدد دیتے ہوئے گاڑی تک لے گئے۔ واقعے کے بعد ریلی فوری طور پر ختم کر دی گئی۔ امکان تھا کہ اس ریلی میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنے نائب صدارتی امیدوار کے نام کا اعلان کریں گے۔ امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کا نیشنل کنونشن اگلے ہفتے ہونا ہے جس میں صدارتی امیدوار کو باضابطہ طور پر نامزد کیا جائے گا۔ حملے کے بعد ٹرمپ کو قریبی اسپتال لے جایا گیا جہاں طبی امداد دے کر انہیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ جائے واقعے سے ایک AR ٹائپ رائفل بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ ٹرمپ پر حملے کے حوالے سے ایک عینی شاہد نے برطانوی ٹی وی کو بتایا ہے کہ اس نے ایک حملہ آور کو عمارت کی چھت پر بندوق لے کر چڑھتے دیکھا تھا اور وہ کرالنگ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا جس پر اس نے پولیس اہلکار کو مشتبہ شخص کی موجودگی سے آگاہ کر دیا تھا۔ عینی شاہد کا کہنا ہے کہ مشتبہ شخص اسے تقریباً 20 فٹ دور تھا۔ اس کی بندوق بالکل واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ پولیس کو بتایا تھا تاہم اہلکار کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ عینی شاہد نے کہا کہ اس صورتحال میں وہ اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت خطاب جاری کیوں رکھے ہوئے ہیں، اہلکاروں نے انہیں اسٹیج سے نیچے کیوں نہیں اتارا۔ عینی شاہد نے کہا کہ 2-3 منٹ سے وہ اہلکاروں سے کہہ رہا تھا مگر نوٹس نہیں لیا گیا اور اوپر موجود سیکرٹ سروس کے اہلکار ہمیں نیچے دیکھ رہے تھے، ہمیں بار بار نشاندہی میں کر رہا تھا کہ وہاں حملہ آور موجود ہے اور پھر 5 گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے تازہ ترین معلومات کے لیے ہم بات کریں گے واشنگٹن ڈی سی میں موجود امریکی نشریاتی ادارے وائس آف امریکہ کے نمائندے اسد حسن سے۔ اسد، یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ امریکی تحقیقاتی اداروں کی اب تک تفتیش کیا کہتی ہے، کیا محرکات ہو سکتے ہیں اس قاتلانہ حملے کے پیچھے؟ جی بہت شکریہ۔ محرکات کو تو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ جو حملہ آور تھا اس کی آئیڈینٹی ڈسکلوز کر دی گئی ہے۔ 20 سالہ جو یہ نوجوان تھے میتھیو کروک، ان کی آئیڈینٹی بتائی گئی ہے لیکن ان کے محرکات کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہے۔ صرف اتنا یہ ضرور پتہ چلا ہے کہ اگر وہ یہاں پہ ووٹر اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، تو وہ ایک رجسٹرڈ ریپبلکن ووٹر تھا لیکن کچھ عرصے سے اس کے تصورات، اس کے خیالات میں تبدیلی آئی اور ریسنٹلی اس نے $15 کا ایک ڈونیشن دیا تھا کچھ لبرل گروپس کو۔ اور سوشل میڈیا پہ جو مختلف ویڈیو وائرلز ہیں، ہم ان کو ریفرنس تو نہیں بنا سکتے لیکن بہت سارے حوالوں سے ایک آدھ ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے جس سے وہ ٹرمپ کے ساتھ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے۔ سو موٹیوز کے بارے میں انویسٹیگیٹو اتھارٹیز، انویسٹیگیٹو ایجنسیز وہ اس پہ کام کر رہی ہیں۔ اچھا، آپ نے حملہ آور کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات دی ہیں۔ اچھا، خبریں کچھ ایسی بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم جاری رکھیں گے، تو اس بارے میں آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی، ملواکی میں جو کہ وسکانسن اسٹیٹ کا ایک شہر ہے، یہاں پہ ریپبلکن نیشنل کنونشن ہونے جا رہا ہے منڈے سے، اور اس کنونشن میں فارملی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پارٹی کی طرف سے نامینیشن کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ تیسری کنزیکٹیو ٹائم ایسا ہوگا کہ وہ اپنی پارٹی سے، ریپبلکن پارٹی سے یہ نامینیشن جیتنے میں یہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور یہیں پہ وہ اپنے وائس پریزیڈنٹ کا بھی اب اناؤنس کریں گے کہ ان کے ساتھ ان کا رننگ میٹ کون ہو سکتا ہے۔ اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ان کی کیمپین نے گزشتہ روز یہ بتا دیا تھا کہ یہ ملواکی کے اندر جو کنونشن ہے ریپبلکن نیشنل کنونشن، یہ بھی ٹائم پہ ہوگا۔ اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ کہا ہے کہ میں اس انسیڈنٹ کے بارے میں اور ٹوٹل قوم سے خطاب تھرسڈے کو ہی کروں گا۔ تھرسڈے وہ دن ہے جس دن وہ اس کنونشن کے اندر نامینیشن اپنی ایکسیپٹ کریں گے۔ سو وہ اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ کیمپین جو ہے وہ یہ انڈیکیشنز ہیں کہ وہ جاری رہے گی۔ البتہ سیکیورٹی کے جو ڈائنامکس ہیں اس کے اوپر مزید غور ہو رہا ہے، مزید سیکیورٹی کو سخت کیا جا رہا ہے، لیکن سیکیورٹی کے بارے میں جو خدشات ہیں وہ نئے نہیں ہیں۔ 2021 کے بعد سے جنوری میں جب پریزیڈنٹ بائیڈن نے اوتھ لیا تھا اور 6 جنوری کو
ओथ लेने से पहले यहाँ पे जो कैपिटल राइट्स थे उसके बाद से मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियां ये वार्निंग देती आई हैं कि 2024 का जो इलेक्शन है वो सिक्योरिटी के एतबार से बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। अच्छा असद, ये बताइएगा, खबरें तो ये भी हैं, अमरीकी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि हमलावर को हमले से पहले नोट कर लिया गया था, लेकिन वहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे इन्होंने इस पर एक्शन नहीं लिया। इससे मुतालिक आपके पास कोई मालूमात हैं, क्यों ऐसा हुआ? अगेन ये आपने आई विटनेस अकाउंट कुछ चलाए हैं, अगेन इसके ऊपर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ही कोई बात कर सकते हैं कि वो कितने वो उसको वेरीफाई कर सकते हैं उनकी बात को कि आया उनकी नॉलेज में ये बात लाई गई थी या नहीं लाई गई थी, और जिनके नॉलेज में लाई गई थी वो किस केडर में थे और किस सिक्योरिटी फोर्स के साथ उनका ताल्लुक था। अमेरिका के अंदर मुतअद्दिद सिक्योरिटी के इदारे हैं, ख़ासतौर पे प्रेसिडेंशियल इस कैंपेन के अंदर बहुत स्ट्रिक्टली वो दोनों प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट्स हैं उनको सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे असद हसन हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले के फौरन बाद एहलकारों ने हमलावर को गोली मार दी। इस मौके पर एहलकारों को ये कहते सुना जा सकता है कि शूटर मर चुका है और अब डोनाल्ड ट्रंप को स्टेज से गाड़ी की तरफ ले जाया जा सकता है, जिस पर साबिक सदर की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों ने डोनाल्ड ट्रंप को खड़ा किया और उन्हें पूरे हिसार में लेकर गाड़ी की तरफ रवाना हो गए। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को कातिलाना हमले में जख्मी कर दिया गया है। इससे पहले भी अमेरिका के कई सदूर और साबिक सदूर को हमलों का निशाना बनाया जा चुका है। यही नहीं, अरकान कांग्रेस और गवर्नर्स भी हमलों का निशाना बने हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर एंड्रयू जैक्सन पर शूटर ने उस वक्त 2 गोलियां चलाई थीं जब वो आखिरी रसूमात में शरीक थे, ताहम बंदूक ना चल पाई थी। सदर थियोडोर रूजवेल्ट 1912 में दोबारा सदारत के लिए इंतखाबी मुहिम में थे जब मिल्वाकी शहर में उन पर गोली चलाई गई थी। सदर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट पर 1933 में कातिल ने मियामी में गोली चला दी थी। वो बाल बाल बच गए थे। शिकागो मेयर एंटन सरमैक मारे गए थे। सदर हैरी ट्रूमैन को 1950 में व्हाइट हाउस के सामने गोली मारी गई थी। अलाबामा के गवर्नर जॉर्ज वॉलिस सदारती इंतखाबात की मुहिम पर थे जब 1972 में उन्हें वाशिंगटन डीसी में गोली मारी गई थी, जिससे वो मफलूज हो गए थे। सदर जेराल्ड फोर्ड पर 1975 में 2 कातिलाना हमले किए गए थे। सदर रोनाल्ड रेगन को 1981 में वाशिंगटन डीसी में तकरीर के बाद होटल के बाहर गोली मारी गई थी। वाकये में उनके प्रेस सेक्रेटरी शदीद जख्मी भी हुए थे। साबिक सदर बराक ओबामा पर सन 2011 में कातिलाना हमला किया गया था। यही नहीं, इब्राहिम लिंकन, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैकिनली और जॉन एफ कैनेडी कातिलाना हमले में मारे गए थे। अमरीकी सदर बाइडन की जानिब से ट्रंप की रैली में फायरिंग की मजम्मत, कहा ट्रंप हमले में महफूज रहे। ये जानकर खुशी हुई है, इस तरह के तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे वाक़े की मजम्मत के लिए बतौर कौम मुत्तहिद होना चाहिए। हर किसी को इस वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए। It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. But the bottom line is that the Trump rally was a rally that he should have been able to be conducted peacefully without any problem. But the idea that there's political violence or violence in America like this is just unheard of. It's just not appropriate. And everybody must condemn it. सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की मजम्मत की है। ट्रंप की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल वक्त में उनकी हमदर्दियाँ और नेक ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी वाक़े की मजम्मत की गई। PTI तर्जुमान ने कहा कि तशद्दुद से पाक सियासत जमहूर पसंद अक़वाम के लिए चैलेंज बन चुकी है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, नौशहरा में नामालूम अफराद की फायरिंग से सहाफ़ी मलिक हसन ज़ेब जाँ बहक हो गए। DPO अज़हर खान के मुताबिक मलिक हसन ज़ेब को अकबरपुरा के इलाके में उनके घर के करीब 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग का निशाना बनाया। जाए वारदात से शवाहिद और CCTV वीडियो हासिल की जा रही है। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको बताते हैं, पावर डिवीजन ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सारिफीन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे तक महंगा कर दिया गया है। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे इजाफे से 34 रुपये 26 पैसे हो गया है। माहाना 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 7 रुपये 2 पैसे इजाफे से 39 रुपये
15 पैसे हो गया है। महाना 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 41 रुपये 36 पैसे हो गया है। महाना 501 से 600 यूनिट का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 42 रुपये 78 पैसे हो गया है। महाना 601 से 700 यूनिट का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 43 रुपये 92 पैसे हो गया है। महाना 700 यूनिट से ज़्यादा का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 48 रुपये 84 पैसे हो गया है। इन टैक्सेस को मिलाकर स्लैब के हिसाब से फ़ी यूनिट टैरिफ की कीमत मज़ीद बढ़ जाएगी। महाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सारिफिन के लिए 1 यूनिट 3 रुपये 95 पैसे का रहेगा। महाना 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सारिफिन के लिए 1 यूनिट 7 रुपये 74 पैसे रहेगा। बिजली के घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपये तक फिक्स चार्जेस लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सार्फिन पर फिक्स चार्जेस का इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। महाना 301 से 400 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस आयद किए गए हैं। महाना 401 से 500 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर 400 रुपये फिक्स चार्जेस आयद किए गए हैं। महाना 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर 600 रुपये फिक्स चार्जेस लगा दिए गए हैं। महाना 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 800 रुपये आयद होंगे। महाना 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल पर 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद होंगे। सनती सार्फिन के लिए महाना फिक्स चार्जेस 184% बढ़ा दिए गए हैं। सनती सार्फिन के लिए महाना फिक्स चार्जेस 440 रुपये से बढ़कर 1250 रुपये हो गए हैं। बिजली के कमर्शियल सार्फिन के लिए महाना फिक्स चार्जेस में 150% इजाफा हुआ है। कमर्शियल सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 500 से बढ़कर 1250 रुपये हो गए हैं। ज़राई ट्यूबवेल सार्फिन के लिए महाना फिक्स चार्जेस में 100% इजाफा हुआ है। ज़राई ट्यूबवेल सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 200 से बढ़कर 400 रुपये हो गए हैं। पीटीआई हुकूमत ने 2021 में नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की खराबी की रिपोर्ट दबा दी। रिपोर्ट दबाने और मरम्मत न करने पर पीटीआई हुकूमत की मुजरिमाना गफलत से पावर प्रोजेक्ट को गैर मामूली नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी है और बताया कि हेड रेस टनल की कॉन्क्रीट लाइनिंग नहीं की गई। फिर 2022 में टेल रेस टनल में खराबी पैदा हुई और अब मई 2024 में नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बिजली की पैदावार मुकम्मल बंद हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्रोजेक्ट में खराबियों के जिम्मेदार का तयन करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने प्रोजेक्ट दोबारा फ़ाल करने के लिए कमेटी बनाने का भी हुक्म दिया है। नैब ने नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी का 8 दिन का रिमांड हासिल कर लिया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने नैब को तफ्तीश अडियाला जेल में ही करने की हिदायत की है। अदालत ने हुक्म दिया कि दोनों मुल्जिमान को 22 जुलाई को दोबारा पेश किया जाए। नैब ने दोनों मुल्जिमान के 14 दिन के रिमांड की दरख्वास्त की थी। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना के नए रेफरेंस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा, अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र नैब कोर्ट ज़रूरी समझे तो ट्रायल जेल में ही किया जाए। इसी दौरान लाहौर पुलिस ने सानह 9 मई के दौरान जिना हाउस, अस्करी टावर और शादमान थाने पर हमले के केसेस में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी। इन केसेस में बानी पीटीआई को कल पीर 15 जुलाई को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। पुलिस की 12 रुकनी तफ्तीशी टीम ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से तफ्तीश के बाद गिरफ्तारी डालने का फैसला किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पीटीआई एक थी, एक है और एक रहेगी। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई के 25 अरकान के बयान हलफी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए गए हैं। कल तक 41 अरकान के बयान हलफी जमा करवा देंगे। एक बार फिर आपको बताएंगे, नौशहरा में नामालूम अफराद की फायरिंग से सहाफ़ी मलिक हसन ज़ेब जाम बहक हो गए। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई है। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुश्ताक पराचा से। मुश्ताक, सबसे पहले तो बताइएगा कि इस वाक़े पर पुलिस का क्या मौक़िफ़ है और फिर ये कि इस वीडियो में जो मंजर आम पर आई है इस पर क्या वाज़े देखा जा सकता है? डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नौशहरा अजहर खान का कहना है कि पुलिस की 3 तफ्तीशी टीमें तश्कील दे दी गई हैं और वो वाक़े की शवाहिद इकट्ठी कर रही हैं और अब तक जो उनकी इब्तिदाई तफ्तीश हुई है उसमें वो उनका कहना है कि वो हर पहलू से इसकी तफ्तीश करेंगे। इनके कुछ ज़ाती मसाइल भी हैं, उस पर भी देखेंगे। जो सीसीटीवी फुटेज जियो न्यूज़ को मिली है उसमें साफ देखा जा सकता है कि मुल्जिम ने पहले 2 फायर किए हैं और गाड़ी जो है उसको मलिक हसन ज़ेब को फायर लग गया जिससे उससे गाड़ी बेकाबू होकर दीवार से टकराती है। फिर वही कातिल जो है वो सीधा जाता है, जो बारिश नौजवान लड़का है, सफेद टोपी पहनी हुई और उसके ऊपर फायरिंग कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुश्ताक पराचा, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे।
तहरीक लबैक पाकिस्तान का जुड़वा शहरों इस्लामाबाद, रावलपिंडी के संगम, फैजाबाद के मुकाम पर धरना जारी है और धरने के बायस जुड़वा शहरों के शहरियों को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम फैजाबाद के मकाम पर तहरीक लबैक ने गुज़िश्ता रोज से धरना दिया हुआ है। धरने से जुड़वा शहरों के दरमियान ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। एक्सप्रेस वे, मरी रोड, I8, डबल रोड समेत मुतादिद शाहराहें बंद हैं। मुख्तलिफ शाहराहों की बंदिश से मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक के रश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये देखें जी, ये रोड वगैरह कितनी ट्रैफिक ब्लॉक है, ये आए दिन का ये मामलात हैं। अगर हमारा कारोबार है इस जगह पे, कराची से अभी स्टेशन से आए थे, स्टेशन से तकरीबन 1 घंटा हो गया है, अभी तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। खुदा ना खास्ता किसी को इमरजेंसी पड़ जाती है मरीज को, तो इस ट्रैफिक के बहरान में वो किधर लेके जाएंगे मरीज को। मरी रोड से पहले 1 घंटा से आप डबल रोड पर आए, स्टेडियम रोड आपने फैजाबाद जाना है, अभी घंटा इधर हो गया हमें।